اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ آپ حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں، 21 رمضان ہے آج، مولا علی کی شہادت کے دن ہے، لہٰذا ہم باہر جا نہیں سکتے، گھر میں ہی چھوٹی موٹی عزاداری کر کے مولا کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ مولا اس کو قبول فرمائے۔ کچھ فضائل کے جملے، اس کے بعد ربط مسائل۔ اپنے ایک لفظ سنا ہوگا نباہ۔ نباہ کا مطلب ہوتا ہے خبر، نباہ کا مطلب ہوتا ہے خبر، اور لفظ نبی، نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر پہنچانے والا، یعنی کہ 1,23,999 نبی، 24,000 نبی سب آئے خبر پہنچانے کے لیے۔ ان کا نبی کا مطلب ہی ہے خبر پہنچانے والا۔ تو کوئی خبر تھی جس کو آسمان سے یہ زمین فرش تک لوگوں کے درمیان پہنچانے کے لیے یہ دور بدر ہر وقت پر آئے ایک ایک نبی ہے، اور ہر نبی سب سے اولو الامر نبی ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کو نبی عظیم کہا گیا ہے۔ یہ عظیم خبر پہنچانے والے ہیں۔ تو ہم نے غور فکر کیا کہ یہ عظیم خبر ہے کیا، آخر یہ عظیم خبر ہے کیا جس کو پہنچانے کے لیے ہمارے آخری نبی کو بھیجا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ عظیم خبر، یہ آپ کا وہ عظیم خبر ہے مولا علی کی، من کن تو مولا فہذا علی مولا، یہ ہے وہ عظیم خبر جس کو یہ کیا بولتے ہیں حضور پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ اور ایک لفظ ہے آیت الکبریٰ، تو یہ عظیم خبر تھی مولا کی ولایت جس کو پہنچانے کے لیے نبی آئے تھے، تو یہ خبر ان کو پہنچانی تھی۔ اور ایک آیت الکبریٰ ہے لفظ، خبر تو پہنچانے عرش سے فرش پر آئے نبی ہمارے درمیان، تو پھر یہ معراج کیوں ہوئی، نبی کو معراج کیوں ہوئی، سبحان اللہ، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ اور نبی کو آپ کو معراج پہ بلایا، اللہ نے نبی کو معراج پہ اس لیے بلایا، آیت الکبریٰ مطلب نشانی دکھانے کے لیے بلایا، جس کو غدیر کے میدان میں نبی نے پہنچائی۔ وہ نشانی کیا تھی؟ نشانی میں اللہ نے مولا علی کو دکھایا کہ اے نبی، یہ ہے آیت الکبریٰ ہے، ان کو پہچانوانا ہے۔ تو غدیر خم کے میدان میں آپ کا تمام اصحاب، آپ یہ حج کے دوران، حج کے بعد سب ایک میدان میں نبی نے سب کو روک لیا۔ معلوم تھا کہ یہ تو بھاگنے میں آگے ہیں، ہر جنگ میں بھاگے ہوئے لوگ تھے، تو سب کی قجابوں کو رکھ لیا اپنے پاس، اونٹوں کی قجاب، کیونکہ اونٹ کی قجابیں لے لیا جائے گا تو پھر یہ جا نہیں سکیں گے۔ دیکھیے کیسا انتظام نبی نے کیا ہے، دیکھیے نبی نے کیا انتظام کیا ہے، کتنی عظیم خبر تھی یہ، اس کو پہنچانے کے لیے نبی نے کیا کیا انتظام کیے، دیکھ لیجئے ہمارے نبی نے۔ تو یہ عظیم خبر کیا تھی؟ عظیم خبر مولا علی کی ولایت تھی، من کن تو مولا فہذا علی مولا، آیت الکبریٰ علی کی نشانی تھی جس کو ہاتھ اٹھا کر حضور نے سب کے سامنے دکھایا، یہ تھی عظیم خبر۔ اب دیکھیے یہ مغزوں کو کیا کہوں میں ان کو، کہ ان کو بند کمرے کی بات یاد رہتی ہے، اور عوام میں جو بات نبی کہہ رہے ہیں، سنت پر عمل کرنا جانتے ہیں، مگر جو اصل سنت تھی، جو جہاں پر اسلام کو ختم ہوا، اسلام مکمل ہوا، وہ بھول گئے۔ اور ایک بند کمرے میں جہاں پہ نبی اور جناب ابو طالب کی شہادت کے وقت ان میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، یہ انہیں پتہ چل گیا ہے۔
मगर गदीर कुम सुभान के अल्लाह, मैदान में सुभान अल्लाह। जो नबी हाथ उठाकर दिखा रहा है वो नहीं दिखाए ने। देखिए इनकी क्या सुभान हालत अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा उन्हें सल्ली ये पता अला चल गया उस मुहम्मदिन व कमरे अला में कि नबी को जनाबे अबू तालिब, नबी ने जनाबे अबू तालिब को कहा कि आप आखिरी वक्त में कलमा पढ़ लिया। अरे उसको क्या कलमा पढ़ाओगे जिसने कलमा गो को पाला है, उसको तुम कलमा पढ़ाओगे? और कलमा गो को तो उन्होंने पाला है, नबी को पाला है उन्होंने। अल्लाह ने उनकी मोहब्बत, नबी से इतनी मोहब्बत करते थे कि उस वजह से खुद कलमा को पाला। हाँ, खुद कलमे को पाला है उन्होंने। अल्लाह को इतनी पसंद आई जनाब अबू तालिब की मोहब्बत के उनकी नस्ल में, जनाब अबू तालिब की नस्ल में इमामत को इमामत दे दी। सुभान अल्लाह, बेशक। सलवात भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो वो पैगाम क्या था, वो अजीम खबर क्या थी? वो अजीम खबर थी मौला की विलायत। वो अजीम खबर मौला की विलायत थी, और वो अजीम खबर मौला की विलायत थी। और हाथ उठाकर निशानी के तौर पर आयतुल कुबरा जो वहाँ अल्लाह ने उन्हें मिराज पे दिखाया था, वो अजीम निशानी को अल्लाह ये नबी ने दिखाया है गदीर कुम के मैदान में। ये सब भूल गए, ये याद ना रहा उसको। और आज के अय्याम है, मौला अली की शहादत का वक्त, शहादत के दरमियान चल रहे हैं। आपको आज 21वां दिन आ गया। 19वीं शब को जब ये जनाब कुलसूम इमाम हसन को मौला अली कहते हैं कि ए हसन, आज मैं अपनी बेटी कुलसूम के घर अफ्तार पे जाना चाहती हूँ। जनाब कुलसूम इंतज़ाम करती हैं। मौला अली आए और दस्तरखान पर जनाब कुलसूम ने जौ की रोटी, नमक और आपका 2-3 तरह की चीज़ें रखी। दूध का प्याला, दूध का प्याला रखा था। तो मौला ने कहा, ए बेटी कुलसूम, तुम मुझे नहीं जानती। क्या हुआ बाबा? तो वो समझ गए, वो चाहती थी कि नमक का प्याला जो है वो उठा ले, मगर मौला अली ने नहीं, ये दूध का प्याला ले जाओ। यतीम बच्चे कहाँ पर कहीं पे दूध के लिए परेशान, मैं दूध का प्याला पीऊँगा, मैं दूध पीऊँगा। और तुम जानती हो कि मैं एक से ज़्यादा चीज़ दस्तरखान पर पसंद नहीं करता। मौला अली का ये मकाम है। मौला अली क्या समझेगी दुनिया मौला अली को। उसके बाद मौला चले, सुबह की नमाज का वक्त हो गया, मौला जा रहे हैं। बत्तखें जो थी जनाब कुलसूम के आंगन की बत्तखें मौला को रोक रही थी अपनी बेज़बानी में कि मौला मत जाइए। मौला रास्ता बदल देते हैं, फिर वहाँ पे भी बत्तखें रोक लेती हैं, फिर मौला फिर रास्ता बदल देते हैं, फिर मौला झुकते हैं, बैठते हैं और उनके सर पर हाथ देते हैं। उसके बाद फिर मौला चलते हैं आगे। उसके बाद फिर दरवाजे की जो जंजीर है वो भी मौला को रोक रही थी, मौला मत जाइए। सब जानते थे कि मौला की शहादत का वक्त नजदीक था। मस्जिद कूफा पहुंचे, देखिए मौला का, मौला अपने काफिर को भी नमाज के लिए उठाते हैं। तो जो मोहब्बत का दावा करते हैं, अगर वो नमाज नहीं पढ़ते तो कुछ कामयाब नहीं होने वाला। मौला काफिर को भी नमाज के लिए उठा रहे थे, उठ जाओ नमाज पढ़ लो। फिर मौला जाते पहले सजदे, पहले रकअत की दूसरी सजदे में मलून ने मौला की सर पे सिर लगा। कितने दिनों से इस जहर में बुझा कर रखा था इस तलवार को, एक ज़रबत लगाई मौला को, मगर मौला का आलम देखिए। मौला उस हालत में कहते हैं जनाब हसन को, आए हसन तुम नमाज को मुकम्मल कर। देखिए नमाज की क्या अफजल है, नमाज कितना अफजल है, लोगों को समझना चाहिए। जनाब अली बेनमाजी को पसंद नहीं करते। उसके बाद फिर जनाब हसन नमाज मुकम्मल, कैसी हालत में कैसे नमाज मुकम्मल कराई होगी इमाम हसन ने सोच।
दो सजदा, एक मौला अली का सजदा, एक करबला में इमाम हुसैन। उसके बाद मुकम्मल हुई नमाज। उसके बाद इमाम हुसैन लेकर चले मौला को, घर की तरफ जा रहे थे। उनके साथ उनके असहाब भी थे। जैसे ही घर करीब आया, मौला देखिए मेरा मौला कहते कि बेटा हसन, मेरे चाहने वालों को कह दो कि तुम वो चले जाए, हमारा घर करीब, हमारी बेटियों को पता चले तो वो गिरिया करेंगी और मैं नहीं चाहता कि उनकी आवाज कानों तक। मैं कहूँगा मौला आपको अपनी बेटी की आवाज का इतना, आइए कूफे में देखिए मेरी शहजादी इन कूफियों के दरमियान खुतबे दे रही है, इन शराबियों के दरमियान खुतबे दे रही। मौला घर में दाखिल होते हैं, जनाब ज़ैनब लिपट जाती है उस हालत में। मेरे मौला को, सबको मौला ने रोका कि मत रो बेटों को, मत रो, गिरिया मत करो, मगर जब जनाब ज़ैनब रोती थी मौला बर्दाश्त नहीं कर सकता, मौला खुद रो देता। उसके बाद वसीयत करने लगे मौला मेरे, सबको इमाम हसन के पास बुलाया, सबको इमाम हसन के हाथ में सबका हाथ दिया। एक दूर पे छोटा सा बच्चा रो रहा था, रोते हुए वापस अपनी माँ के पास गया और जनाबे मिलबानी से बोला जनाब अब्बास ने बोला, ए माँ दिल गिरा, देखिए सबको हाथ इमाम हसन को दिया मगर मेरा हाथ किसी को नहीं। जनाब उम्मुल बनीन भी रोने लगी तो मौला अली ने पूछा जनाब ज़ैनब से, ऐसे नाम ये किसके रोने की आवाज़? तो जनाब ज़ैनब ने कहा मौला जनाब उम्मुल बनीन रो रही। तो वो क्यों रो रही है? तो बोले जनाब अब्बास, क्योंकि अब्बास रो रहा है। तो अब्बास क्यों रो रहा है? तो जनाब अब्बास इसलिए रो रहा है कि आपने सबका हाथ इमाम हसन को दे दिया मगर अब्बास का हाथ किसी को नहीं दिया इसलिए। तो फिर जनाब अब्बास को इमाम उम्मुल बनीन लेकर आती है इमाम अली के पास। उसके बाद इमाम हुसैन को बुलाया आगे मौला अली, और अब्बास का हाथ मौला अली इमाम हसन को दिया मौला अली। उसके बाद सबसे कहा कि आप तुम सब बाहर चले जाओ, मैं ज़ैनब से कुछ वसीयत करना। सब चले गए। फिर उसके बाद जनाब ज़ैनब को मौला अली ने कहा, ए बेटी ज़ैनब, करबला के मैदान जब मेरा बेटा इमाम मेरा हुसैन शहादत के लिए जाएगा तो तुम उसके गले का बोसा लेना। तो एक ये वसीयत है जनाब ज़ैनब को मौला अली ने की। एक वसीयत इमाम हुसैन को इमाम हुसैन को फातिमा ज़हरा ने की थी कि जब आखिरी वक्त होगा करबला में तुम शहजादी को जनाब ज़ैनब का बोसा लेना, हाथों का बोसा लेना। आखिर क्यों? इसलिए कि करबला में शहादत के बाद मौला के जनाब ज़ैनब के हाथों में रस्म बांधी जाए। उसके बाद ये वक्त आखिर करीब आया मौला इमाम अली का। उसके बाद फिर जनाजा उठा, एक तरफ आगे से जनाब जिब्राइल और मिकाइल लिए थे, पीछे से इमाम हसन इमाम हुसैन लिए थे। एक मकाम पे गए जहाँ पे कब्र बनी हुई थी पहले से, जनाब नूह ने नबी ने बनाई रखी थी कब्र। मैं कहूँगा मौला आपकी कब्र उठाने की जिब्राइल मिकाइल इमाम हसन इमाम हुसैन, मगर एक वो जनाजा है करबला के मैदान में जिसका उठाने वाला कोई नहीं।
السلام علیکم.